आज का हमारा चैप्टर है ट्राइगोनोमेट्री। इससे पहले कि हम ट्राइगोनोमेट्री पढ़ना शुरू करें, पहले ये जान लेते हैं कि बोर्ड एग्जाम में कितने मार्क्स से कंट्रीब्यूट करते हैं। तो टोटल 80 में 12 मार्क्स सिर्फ ट्रेगो से होंगे, जो कि ऑलमोस्ट 15% कंट्रीब्यूट करता है, जो कि अलजेब्रा और ज्योमेट्री के बाद तीसरा सबसे ज़्यादा मार्क्स है। वैसे अलजेब्रा और ज्योमेट्री में कंटेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा है। व्हाट इज ट्राइगोनोमेट्री? स्पीक करते हैं इस ट्रेगो वर्ड को। ट्राइगोनोमेट्री इज अ ग्रीक वर्ड trigon and metron. Tri means 3, gon means sides, and metron means measure. Means the measurement of sides and angles of a triangle is called trigonometry. Definition: trigonometry is a branch of mathematics which deals with the measurement of sides and angles of a triangle. एक चीज ध्यान रखेंगे, whenever we talk about triangle, we are talking about right angle triangle. ट्राइगोनोमेट्री को इंडिया में इंट्रोड्यूस कराया था आर्यभट्ट ने। Aryabhatta introduced trigonometry to India. चैप्टर 8 को हम स्प्लिट करेंगे 3 पार्ट में। जो पहला पार्ट होगा उसमें मैं इंक्लूड करूंगा एक्सरसाइज 8.1 और दूसरे पार्ट में 8.2 एंड 8.3 और जो चौथा पार्ट होगा उसमें डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 8.4 को, यानी ट्राइगोनोमेट्री चैप्टर 8 के टोटल 3 वीडियोस होंगे। फर्स्ट फॉर एक्सरसाइज 8.1, सेकंड फॉर एक्सरसाइज 8.2 एंड 8.3, एंड देयर विल बी लास्ट एक्सरसाइज फॉर ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, and that will be the third video of this chapter. Now let's discuss about the trigonometric identities. Trigonometric ratios, trigonometric identities हम एक्सरसाइज 8.4 में डिस्कस करेंगे।
So I already told you that whenever we discuss about trigonometry, we are talking about the right angle triangle. So here is a right angle triangle ABC, right angle at B, C and A are the two acute angles. और एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, जैसे नॉर्मली अलजेब्रा में हम जो चीज़ें अननोन रहती हैं उनको हम ए बी सी एक्स वाई जी एटसेट्रा से एज्यूम करते हैं, लेकिन ज्योमेट्रिक टर्म में जो एंगल्स अननोन रहते हैं उन्हें हम थीटा से एज्यूम करते हैं, थीटा। सो एंगल भी यहाँ पे राइट एंगल हो गया, दैट इज 90 डिग्री। ए और सी एक्यूट एंगल हो गया। एक्यूट एंगल मीन्स एंगल्स विच आर लेस देन 90 डिग्री बट मोर देन 0 डिग्री। तो क्या है ये ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियोज? ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियोज में we discuss about the relation between an acute angle and the sides associated with this. So here in right triangle ABC, the longest side AC is hypotenuse, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एस से, और फिर दो साइड्स बच गए यहाँ पे, एक हुआ परपेंडिकुलर और दूसरा बेस। here is base and side AB is perpendicular. So trigonometric identities for an acute angle is the relation between the angle and sides associated with that angle. Trigonometry. Ratios of an acute angle in a right triangle is the ratio of sides associated with or linked with that acute angle. So basically there are three trigonometric ratios. Those three basic ratios are first sine and second is cosine and third is tangent. लेकिन हमें इस चैप्टर में इन फुल फॉर्म्स को यूज नहीं करेंगे, इसके बदले में इनका एब्रिविएटेड फॉर्म यूज करेंगे। साइन को हम सिर्फ एस आई एन लिखेंगे, वैसे ही कॉस को सी ओ एस एंड टैन विल बी रिप्रेजेंटेड एज टी ए tangent will be represented as TAN. Sin, cos, tan. क्या है sin? So though we have two acute angles in a right triangle, if we consider angle C, call it theta. So sin for angle C, or we can write C as theta, is the ratio of perpendicular and hypotenuse. For angle C, perpendicular is AB and hypotenuse is AC. So sin is the ratio of perpendicular and hypotenuse. Similarly, the cos value for angle C or theta is equals to, cos is the ratio of base and hypotenuse, B for base and H for hypotenuse. And similarly, tan value of angle C or theta is
परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एक चीज ध्यान रखेंगे, हाइपोटेनस फिक्स है किसी भी रेक्टेंगल ट्रायंगल में, दैट विल बी द लॉन्गेस्ट साइड, बट द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस will change. That depends which angle we are considering. So if we are considering angle C, that we have assumed as theta, for this angle the base is BC and the perpendicular is AB. But if we discuss about angle A का value यहाँ पे angle A plus angle C is equals to 90 degree. So if angle C is theta, then angle A is 90 minus 90 डिग्री माइनस थीटा। तो अगर हम बात करते हैं एंगल ए के लिए, तो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर वैल्यू होगा BC और बेस हो जाएगा AB। और वही एंगल C के लिए परपेंडिकुलर होगा AB और बेस होगा BC। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर हम डिस्कस करें एंगल C के बारे में, दो साइड विच कंटेन द टू एंगल्स, फर्स्ट द राइट एंगल एंड द सेकेंड दैट एक्यूट एंगल विच वी आर डिस्कसिंग अबाउट, दैट साइड विल बी द बेस ऑफ दैट ट्रायंगल। फॉर दैट केस जैसे हमने यहाँ पे एंगल C लिया है, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल और ये थीटा यानी एक्यूट एंगल दोनों इस साइड पर है, तो जिस साइड पे दोनों ही एंगल्स आएंगे वो हमारा बेस होगा और बचा हुआ स्मॉलर साइड वो परपेंडिकुलर होगा। हाइपोटेनस ये तो फिक्स ही रहेगा जो कि लॉन्गेस्ट साइड होगा। वैसे अगर हम बात करें एंगल ए के बारे में, तो अब ए बी पे ये दोनों एंगल आ रहे हैं, वो एक्यूट एंगल जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं और दूसरा वो राइट एंगल। तो इस केस में अब ये हो जाएगा बेस एंगल ए के लिए, ए बी हो गया बेस और बाकी जो दूसरा साइड बचा वो हो गया वहाँ पे परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस तो फिक्स रहने वाला है सारे केसेस में, जो कि लॉन्गेस्ट साइड होगा। इनके अलावा तीन और ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज होते हैं जो कि एक्चुअली में इनके रेसिप्रोकल्स होते हैं। साइन कॉस टैन cot sec and cosec। इनके भी फुल फॉर्म्स लेते हैं। cot for cotangent, sec for secant and cosec is the abbreviated form of cosecant। but we will discuss only the abbreviated form. For cotangent we will use cot only, for secant we will use sec only, and for cosecant we will use cosec only. Again, if we discuss about the theta, cot is the reciprocal of tan, that is equals to 1 upon tan. Similarly, sec theta is the reciprocal of cos theta, 1 upon cos theta, and cosec theta is the reciprocal of sin theta, that is equals to 1 upon sin theta, that is equals to 1 upon, what was the value of tan theta? That was p upon b, perpendicular upon base, that is equals to 1। डिवीजन को हमने कन्वर्ट कर दिया मल्टीप्लिकेशन में और जो डिविडेंड उसका हमने रेसिप्रोकल वैल्यू पुट किया b अपॉन p। सो cot theta is equals to base upon perpendicular। Similarly 1 upon cos is the ratio of base and hypotenuse, b upon h, that is equals to 1 into reciprocal of b upon h is h upon b, that is equals to मल्टीप्लाई करके ये होगा h upon b। Similarly, cosec theta is the reciprocal of sin theta,
that is equals to 1 upon sine theta, and sine is the ratio of perpendicular and hypotenuse, that is equals to 1 into the reciprocal of p upon h is h upon p, that is equals to मल्टीप्लाई करके ये होगा h upon p। तो बेसिकली हमें रिलेशंस याद रखने हैं साइन कॉस और tan के लिए, और बाकी जो तीन ये रेशियोज हैं ये इनके रेसिप्रोकल्स होते हैं। उसके लिए भी एक तरीका है, साइन कॉस tan sin is the ratio of perpendicular and hypotenuse. Similarly, cos is the ratio of base and hypotenuse, and tan is the ratio of perpendicular and base. इसको याद करने का सबसे आसान तरीका है, एक सेंटेंस बनाते हैं, सेंटेंस तो नहीं कहेंगे, बस वो याद रखने के लिए तरीका होगा, प्यारे बेटा पप्पू हेलो हेलो बोल। प्यारे बेटा पप्पू हेलो हेलो बोल। और ये रहा हमारा साइन कॉस tan, ये सीक्वेंस याद रखेंगे। साइन के लिए हो गया p अपन h, कॉस के लिए b अपन h, tan के लिए p अपन b। साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, तो इसका वैल्यू हो जाएगा h अपन p। वैसे ही कॉस का रेसिप्रोकल सेक, और सेक का रेसिप्रोकल हो जाएगा h अपन b। सिमिलरली द रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा इज cot थीटा, दैट विल बी b अपन p। एक चीज और समझ लें, एक्चुअली बेसिकली अगर देखा जाए तो सिर्फ एक ही ट्राइगोमेट्रिक रेशियो है, बाकी सारे साइन से ही डिराइव्ड है। जैसे अगर हम बात करें एंगल सी के लिए, जिसे हमने थीटा मान लिया, साइन थीटा इज इक्वल्स टू दैट इज द रेशियो परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर हो गया, फिर से चेक कर लेते हैं। जिस साइड पे ये दोनों एंगल्स होंगे, राइट एंगल और वो एक्यूट एंगल जिसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, वो हो जाएगा हमारा बेस, और जो दूसरा स्मॉलर साइड बचा वो होगा परपेंडिकुलर। साइन इज द रेशियो परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस, तो यहाँ पे ये हो गया परपेंडिकुलर ए बी और हाइपोटेनस हो गया ए सी। अगर हम दूसरे एक्यूट एंगल के लिए साइन वैल्यू कैलकुलेट करें, यानी एंगल ए के लिए साइन, एंगल ए को हमने माना है 90 माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल्स टू, तो अब इस बार हमारा बेस वैल्यू हो गया ए बी, राइट एंगल और एक्यूट एंगल इस साइड पर है, और परपेंडिकुलर हो गया दूसरा वाला स्मॉलर साइड। सो परपेंडिकुलर इज बी सी एंड हाइपोटेनस इज ए सी। एंगल ए एंगल सी का कंप्लीमेंट्री वैल्यू है। कंप्लीमेंट्री मींस टू एंगल्स whose sum value is 90 डिग्री। एंगल बी 90, तो ट्रायंगल में सम प्रॉपर्टी से एंगल ए और एंगल सी की सम 90 डिग्री होंगे। ये हो गया थीटा, तो ये हो गया 90 माइनस थीटा। ए सी का कंप्लीमेंट्री है, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं सी ए का कंप्लीमेंट्री है। तो अगर थीटा के रिस्पेक्ट में इसे देखें तो ए बी हो गया हमारे यहाँ पे परपेंडिकुलर, और ए सी हो गया यहाँ पे हाइपोटेनस। फिर अगर थीटा के रिस्पेक्ट में हम इनको कैलकुलेट करें तो साइड बी सी जो है वो हमने एंगल सी के लिए बेस लिया था, और ए सी यहाँ पे हाइपोटेनस है। अब जब इस वैल्यू को यहाँ से मैच करते हैं, p अपॉन h दैट इज द वैल्यू ऑफ साइन, एंड b अपॉन h दैट इज द रेशियो ऑफ cos, मीन्स वैल्यू ऑफ cos means the sine value of the complementary angle is termed as cos
कॉम्प्लीमेंट्री से सी लिया गया और इस साइन से इस दैट इज इक्वल्स टू कॉस। यानी जब सिंपली हम बात कर रहे होते हैं कॉस थीटा के बारे में, एक्चुअली में हम उस कम्प्लीमेंट्री एंगल के, उसके कम्प्लीमेंट्री एंगल के साइन की बात कर रहे होते हैं। वैसे ही टैन, अगर हम एंगल सी के रिस्पेक्ट में टैन का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो टैन थीटा, एक्चुअली में जो टैन होता है वो साइन और कॉस का रेशियो होता है, साइन थीटा अपॉन cos theta. The value of sin theta is p upon h and the value of cos theta is b upon h, that is equals to p upon h। डिवीजन को हमने कन्वर्ट किया मल्टीप्लिकेशन में और बेस का रेसिप्रोकल h अपॉन b, h एलिमिनेट होगा, that is equals to p upon b। तो इन बेसिक रेशियोज को यूज करके हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.1। Question number 1. In triangle ABC, that is right angle at B. So here is a right triangle ABC. A, B, C. Right angle at B. AB is 24 centimeter. BC is 7 centimeter. इसी नहीं पता गिवन इन ट्रायंगल ABC एंगल B is equals to 90 degree, AB is equals to 24 centimeter and BC is equals to 7 centimeter. To find first sin A cos A, फिर फाइंड आउट करनी है sin C and cos C। sin C and cos C करते सॉल्यूशन। साइन के लिए हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के रेशियो चाहिए, कॉस के लिए बेस और हाइपोटेनस के। हमारे पास परपेंडिकुलर और बेसिस हैं, हाइपोटेनस नहीं है। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम हाइपोटेनस फाइंड करते हैं। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम hypotenuse square AC square is equals to perpendicular square plus base square. So the value of AC is equals to स्क्वायर हटाएंगे हमने जो कि इधर आके रूट में कन्वर्ट हो जाएगा और इसे हमारे पास है AB square plus BC square. Now put the value of these two sides. The value of AB 24 centimeter square and the value of BC is 7 centimeter, that is equals to root under the square value of 24 6 8 8 16 17 7 carry 1, that is 576 and
the square of centimeter square plus the square value of 7 is 49 centimeter square. The sum is 9, 6, 15, 5 carry 1, 8, 4, 12, 2 carry 1, 5, 1, 6 centimeter square. 625 is the square of 25. So 625 centimeter square is equals to 25 centimeter whole square. Square से रूट कैंसिल आउट होगा, that is equals to 25 centimeter. अब हमारे पास इस ट्रायंगल के तीनों साइड्स हैं, परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनस. शुरू करते हैं कैलकुलेशन. देखो sin A is equals to, sin is the ratio of perpendicular and hypotenuse. मैं वो टेबल फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे. sin cos tan sin is the ratio of perpendicular hypotenuse cos b upon h and tan perpendicular upon base. So sin A, यानी हम डिस्कस करें एंगल A के बारे में. तो A के लिए परपेंडिकुलर ये भी होगा यहाँ पे बेस एंगल A और 90 डिग्री साइड A भी प्यार है, तो ये हो गया बेस. अब जो दूसरा छोटा वाला साइड बचा वो हो गया हमारा परपेंडिकुलर. सो हियर परपेंडिकुलर इज BC and hypotenuse is AC. That is equals to BC is 7 centimeter and the value of AC is 25 centimeter. Centimeter cancel out, that is equals to 7 upon 25. Answer. Now cos A, therefore cos A is equals to, फिर से हम एंगल A के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. cos is the ratio of base and hypotenuse. तो एंगल A के लिए बेस वैल्यू हो गया AB और हाइपोटेनस वो सेम रहेगा AC. That is equals to, the value of AB is 24 centimeter and the value of AC is 25 centimeter. Centimeter cancel out, that is equals to 24 upon 25, and here is the second answer. Now sin C, therefore sin C is equals to, अब हमने एंगल चेंज कर दिया. अब हम sin कैलकुलेट करेंगे एंगल C के लिए. तो C के लिए बेस वैल्यू हो गया हमारा BC और परपेंडिकुलर हो गया AB. Since sin is the ratio of perpendicular and hypotenuse, perpendicular is AB and hypotenuse is AC. That is equals to, the value of AB is 24 centimeter and AC is 25 centimeter. Centimeter cancel out, that is equals to 24 upon 25. Third answer. And last one is cos C. Therefore cos C is equals to, cos is the ratio of base and hypotenuse. तो एंगल C के लिए बेस वैल्यू BC and hypotenuse AC. BC is 7 centimeter and AC is 25 centimeter. Units cancel out हो गए, that is equals to 7 upon 25. Answer. और ये होगा हमारा 4. एक चीज़ ध्यान देंगे यहाँ पे, sin A और cos C इन दोनों के वैल्यू सेम है. सिमिलरली cos A और sin C के वैल्यू सेम है. पहले हमने इससे जस्ट पहले हमने बताया, जब हम बात कर रहे होते हैं किसी भी एक्यूट एंगल की साइन वैल्यू के लिए, तो उसी एंगल के लिए cos उसके कम्प्लीमेंट्री का साइन वैल्यू होगा. समझते हैं यहाँ से. इसे एंगल ए के लिए हमने साइन वैल्यू कैलकुलेट किया जो कि 7.25 गया था. अगर ए के लिए हम cos वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो ये सी के लिए साइन वैल्यू होता है. सॉरी, ए का साइन वैल्यू और सी के cos वैल्यू सेम होंगे. क्यों?
क्योंकि जो कॉस वैल्यू है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी ए के लिए साइन वैल्यू होगा। Question 2. In the given figure, find tan P minus cot R. So here's a right angle PQR, that is right angle at Q. Given. In right triangle PQR, angle Q is equals to 90 degree. Value of PQ is 12 centimeter and the value of PR is 13 centimeter. PR is 13 centimeter. To find tan P minus cot R. Solution. सिंपल है, एंगल P के लिए हम tan वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और R के लिए cot वैल्यू और दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे। तो tan परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो होता है और cot बेस और परपेंडिकुलर के, यानी दोनों केस में हमें साइड QR की जरूरत पड़ने वाली है। तो पहले QR फाइंड करते हैं। फिर से अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस स्क्वायर यानी PR स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर दैट इज PQ स्क्वायर प्लस बेस दैट इज QR स्क्वायर। द वैल्यू ऑफ PR इज 13 सेंटीमीटर स्क्वायर पे हमने स्क्वायर पुट किया PQ, द वैल्यू ऑफ PQ इज 12 सेंटीमीटर, PQ स्क्वायर यानी 12 सेंटीमीटर के स्क्वायर प्लस QR नहीं पता, QR को QR स्क्वायर ही ले लेते हैं। वैल्यूज को शिफ्ट करते हैं, 13 सेंटीमीटर स्क्वायर 12 सेंटीमीटर स्क्वायर इधर ऐड हो गया तो जिसमें आके ये सब्ट्रैक्ट हो गया दैट इज इक्वल्स टू QR स्क्वायर। यहाँ से सॉल्व करने के दो तरीके, या तो सिंपली हम यहाँ पे 169 माइनस 144 कर दे, या फिर दूसरा तरीका है हमारे पास, अगर ये सारा टर्म सॉरी स्क्वायर ये बाहर होगा, 13 को अगर हम a मान ले स्क्वायर a स्क्वायर माइनस और 12 सेम स्क्वायर को हम b स्क्वायर मान लेते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस b इंटू a माइनस b। इसका भी इम्प्लीमेंट हम कर सकते हैं। खैर ये वैल्यूज तो हमें याद है तो सिंपली इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन जब बड़े नंबर्स आएंगे जिनकी स्क्वायर वैल्यूज हमें नहीं पता है, जैसे 29, 48, 87, 129, तो उस केस में हम इसका इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। सो द स्क्वायर ऑफ 13 इज 169 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस सिमिलरली स्क्वायर ऑफ 12 इज 144 और सेम का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू QR स्क्वायर। The difference value is 25 centimeter square is equals to QR square। QR से स्क्वायर हटाते हैं जो कि इधर कन्वर्ट हो गया रूट में, रूट अंडर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू
QR. 25 is the square value of 5. So 25 centimeter square can be written as 5 centimeter होल स्क्वायर. दैट इज द वैल्यू ऑफ QR. जैसे हमने रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर बनाया, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, हमारे पास बचा 5 cm is equals to QR. Therefore QR is equals to 5 centimeter. अब आते हैं वापस क्वेश्चन पे. We have to find the difference of tan P and cot R. Therefore tan P minus cot R is equals to tan P. The tan value of P, tan is the ratio of perpendicular and base. तो P के लिए perpendicular QR और base PQ minus cot के लिए एंगल R के लिए cot is the ratio of tan का रेसिप्रोकल हो गया cot, cos का रेसिप्रोकल हो गया sec, वैसे sin का रेसिप्रोकल हो गया cosec. So cot is the reciprocal of tan, that is equals to base upon perpendicular. तो R के लिए बेस वैल्यू होगी QR और perpendicular होगी यहाँ पे PQ, that is equals to, now put the value, वैसे यहीं पे कैंसिल आउट हो जाए, आंसर हो गया 0. फिर हमने वैल्यूज फाइंड आउट किए, उनको पुट करते हैं. The value of QR is 5 centimeter and the value of PQ is 12 centimeter minus QR, that is 5 centimeter and PQ is 12 centimeter. Units यहाँ से cancel हो, that is equals to 5/12 minus 5/12 is equals to 0. Answer. If you have any problem, do comment in the comment section. I will try to explain in next video. Question number 3. If sin A is equals to given sin A is equals to 3/4, then calculate cos A and tan A. Means to find cos A and tan A. Solution. Since sin A is equals to 3/4, since sin is the ratio of perpendicular and hypotenuse, P upon H is equals to 3/4. अब यहाँ से हम रिलेट कर लेते हैं perpendicular values. Therefore P is equals to 3K and H is equals to 4K. Here K is constant proportionality. क्या है ये कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी? इस मान लो कोई राइट एंगल ट्रायंगल है यहाँ पे ए बी सी, इसका परपेंडिकुलर है 3 और हाइपोटेन्यूज है 4. Whenever we discuss about any trigonometric ratio, which are the ratio of the sides corresponding to that acute angle, और जो ratios होते हैं वो हमेशा फ्रैक्शन के सिंपलेस्ट फॉर्म होते हैं. अगर यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म 3/4 है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ट्रायंगल ए बी सी में ये है 3 cm और ये है 4 सेंटीमीटर.
जब हम इनके रेशियोज कैलकुलेट करेंगे 3cm/4cm, cm तो कैंसिल हो गया, बचा यहाँ पे 3/4। हो सकता है ये वैल्यू 3/4 ना हो के 9/12 सेंटीमीटर हो। फिर से cm कैंसिल हो, 3 3 से 9, 3 4 से 12, फिर से वापस आ गया 3/4। हो सकता है ये 36/48 हो, ऑपरेटेबल 36 सेंटीमीटर।